Hello dear students, welcome back. Myself Neha, and today we are going to discuss about our next topic, that is SNP. So firstly we should know what is SNP. The SNP is the abbreviation of single nucleotide polymorphism. Means there is the variation in the single nucleotide. Poly means many and morph means forms. So this single nucleotide polymorphism told us about a single nucleotide positional changes at a particular position in the sequence of the DNA. So it is defined as the DNA sequences have the variations which occurs when a single base is altered. For example, this is the sequence from individual 1 and this is the sequence from individual 2. I have drawn only a single set of not the complementary set, the single सीक्वेंस ऑफ डीएनए दोनों इसका कॉम्प्लीमेंट्री और मेन सेट में से सिर्फ एक सेगमेंट यहाँ ड्रॉ किया है एंड व्हेन दिस सीक्वेंस इज ऑब्जर्व द सीक्वेंस obtained is GCTAACTG and we know that in all of the population of humans there is approximately 99.8% of the similarities. Means the whole of the human population varies only in 0.2% of basis. इससे ज़्यादा वेरिएशन पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में नहीं है. दो डिस्टेंट ह्यूमंस, बहुत दूर दूर का कोई कहीं रिलेशन नहीं है, उनमें भी मैक्सिमम चेंजेस सिर्फ 0.2% डीएनए में होंगे. 99.8% डीएनए सारे ह्यूमंस का एग्जैक्टली सेम है. तो हमने ये कहा कि ये एक इंडिविजुअल है एंड दिस इज अ सेकेंड इंडिविजुअल. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? We had found during the discoveries that during the studies, this position is obtained by a particular nucleotide in one organism and in another individual it is obtained by any other nucleotide. So in these two sequences, we have observed that there is only a change in a single nucleotide, and maybe the case is if there is any other individual, say if there is individual 3, the sequence may be this is same and the change is at this position, this may be this. कोई भी चारों न्यूक्लियोटाइड में से कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ हो सकता है. So this is individual 3 or individual 4. So we have found that a common variant means a particular position of the nucleotide is variable in the population. And that particular position is termed as the SNP, that is single nucleotide polymorphism. When the scientists have worked on the SNPs, they have found that there are approximately 1.6 million to 3.2 million SNPs in the humans. इतनी पोजीशंस, हमारा जो जीनोम साइज है, that genome size is of
3×10⁹ बेस पेयर। ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमंस का जीनोम साइज 3×10⁹ बेस पेयर है। तो उन सब सीक्वेंसेस में से 1.6 to 3.2 मिलियन पोजीशंस ऐसी पोजीशंस है जहां पर हमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएशंस मिला है, एंड दैट्स व्हाई दीज पोजीशंस आर टर्म्ड एज SNPs। इतने बड़े जीनोम में इतनी पोजीशंस ऐसी है जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में ज़्यादा वेरिएबल है। And for the future studies, scientists have prepared the SNP maps. And what are the SNP maps? When we are using the word map, map means locations, means they have prepared the locations. So this is a DNA sequence. इस sequence में वो positions, जिन positions में वेरिएबिलिटी ज़्यादा मिली है, इस तरह की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना कि इंडिविजुअल ए या बी में इन पोजीशंस में चेंज हो सकता है, सब में नहीं होगा, किसी एक या दो पोजीशन में चेंज हो सकता है। से ये वो पोजीशन है जहाँ पर वेरिएशंस कॉमनली मिलती है, बट इन दो इंडिविजुअल्स में इन सारी पोजीशंस में से सिर्फ एक पोजीशन में डिफरेंस है। किसी और में हो सकता है सारी पोजीशन सेम है, कहीं और डिफरेंस है। So these are the locations which are frequently changed in the populations, and these locations when identified, then they are termed as a SNP map. Means these are those nucleotides which are frequently changed in the population. And how this SNP map is useful to us, this is very important. There are various observations regarding this. The first observation, 5 major observations regarding the SNPs are: first, genetic variations are the basis of DNA fingerprinting. यही वो चीज़ है जिससे हम दो इंडिविजुअल्स को डिफरेंट मानते हैं। आर exploited means used in DNA fingerprinting. अब हमने कहा कि पूरी पॉपुलेशन का 99.8% डीएनए तो सेम है, तो कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम करती है? हम कैसे कहते हैं कि इस इंडिविजुअल का डीएनए ये है और इसका ये है? बहुत सारे जगह हम पढ़ते हैं कि पेरेंटेज डिटर्मिनेशन होता है, क्रिमिनोलॉजी में यूज होता है। तो ये जो डिफरेंसेस है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, एंड these are variable in whole of the population. SNPs whole of the human population में variable है. So these are used in identifying two different organisms, not only in the humans but also in all the existing living organisms. Second is this genetic variation is the underlying principle of susceptibility or protection from particular kinds of diseases. So we can say these are the basic reasons in our susceptibility, means हमको डिजीज होगी या नहीं होगी, या हम बोल सकते हैं हमें प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं, और प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस डिजीजेस.
And the example is, there is a gene named as APOE gene. अगर इस जीन में सिंगल बेस में वेरिएशन आ जाती है, इट लीड्स टू अ डिजीज नोन एज अल्जाइमर्स, जिसको हम नर्वस न्यूरॉन डिजेनरेटिव डिजीज भी बोलते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, म्यूटेशन हुई एक जीन में. कितनी म्यूटेशन, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है. या एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये तो हो गई ससेप्टेबिलिटी, हमने कहा प्रोटेक्शन भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल देयर इज अ जीन CCR5. इफ देयर इज अ सिंपल डिलीशन, इसमें से अगर एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाता है, देन इट प्रोवाइड्स द रेजिस्टेंस टू HIV. तो यहाँ पर क्या हुआ, इस जीन में वेरिएशन आने की वजह से एक बहुत बड़ी बीमारी का खतरा कम हो गया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं अगर ये हमारे पास सिंपल सा सॉल्यूशन है तो ये क्यों नहीं करते हैं. एक्चुअली जब कोई जीन बॉडी में है तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई फंक्शन तो ज़रूर होगा. हम HIV तो होगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, बट अगर हम इस जीन के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो क्या उस जीन का फंक्शन अफेक्ट होगा या नहीं. ओके, सो नेक्स्ट इज, it is used to determine the pattern of SNP genotype profile. ये क्या चीज है. Pattern of SNP profile. इसको क्लिनिकल प्रोफाइल से हमने थोड़ा सा जोड़ा है क्लिनिकल एफिकैक्सीज से. एफिकैक्सीज क्या है, एक पेशेंट है वो इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज. अब इस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट इस पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है और उस पेशेंट में पॉजिटिव इफेक्ट्स मीन्स हमें गुड रिकवरी मिलती है. एंड इन द नेक्स्ट केस हम लोगों के सामने एक ऐसा ही केस आता है जिसमें एक पेशेंट है एंड सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज, वी आर यूजिंग द सेम ड्रग बट द रिकवरी इज नॉट सेम. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट. I have taken two examples. There is patient 1 and patient 2. Both patients are suffering from same disease and these both are treated with the same methodology. Treatment दोनों का same है, but we find that the individual one responds better. Means यहाँ पर good efficacy है. Efficacy का मतलब है efficiency, किसकी, ड्रग की, उस मेडिसिन की. And this is a bad response. तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि why this happens. Then the scientist studied the SNP map and they have found that अगर एक SNP मैप ये था, जैसे हमने पीछे बनाया था, कोई भी पोजीशन हो सकती है, ये SNP मैप है. And they have found that in the individual one which shows the good efficacies, means जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए उस ड्रग के लिए, वहां पर ये सेम था जो जनरल पॉपुलेशन में होता है. बट एक जो सेकेंड इंडिविजुअल था उनमें एक पोजीशन ऐसी थी या दो पोजीशंस ऐसी थी जहां पर
वेरिएशंस थे। ये जो डंडे में लगा रही हूं ये न्यूक्लियोटाइड पोजीशंस है जो वेरिएबल है, ठीक है। तो अब है तो 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स ना, ATGC, वो 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग तरह से अरेंज होंगे। तो उन चारों ही न्यूक्लियोटाइड्स का जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सब में भी रिप्लेसमेंट हो तो 4 का ही होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी सारी वेरिएशंस आती क्यों हैं? बिकॉज द पोजीशंस आर लॉट। हो सकता है किसी इंडिविजुअल में एक पोजीशन में चेंज हो सकता है किसी इंडिविजुअल में दूसरी पोजीशन में चेंज हो, एंड देयर इज अ वेरिएशंस बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट इज the fourth point is it revealed the similarity between organisms। अब हमें इससे क्या पता चला कि जो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो सेम भी हो सकते हैं। It revealed the similarity between 2 individuals। इस चीज को हम बोलते हैं कंजर्व्ड एलिमेंट्स। एंड इट मीन्स कंजर्व्ड एलिमेंट्स। कंजर्व्ड एलिमेंट्स यहां पर आता है वर्ड, वो पोजीशंस जो, ये एक अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, बट यहाँ ये डिस्कस इसलिए किया जा रहा है कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड पोजीशंस है। इस न्यूक्लियोटाइड पोजीशन में मैंने एक ऑर्गेनिज्म ए लिया, B, C, ये 3 ऑर्गेनिजम्स हमने लिए हैं। इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में ये हमें सीक्वेंसेस मिली। These are the positions of nucleotides. Now, can you tell me which is the most conserved? Conserved का मतलब है जो थ्रू आउट द पॉपुलेशन चेंज ही नहीं हुई, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी चेंज नहीं हुई। तो हम ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल चेंज नहीं है, ये बिल्कुल चेंज नहीं है, ये बिल्कुल चेंज नहीं है, ये चेंज नहीं है। सो वी कैन से these are most conserved sequences। and most variable sequence कौन सा है? most variable, जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हमें मिले, that is this one and this one। तो 4 और 6 में, सॉरी यहाँ पर 5 आना था और यहाँ पर 4 और 6। तो हम अगर वेरिएशंस कम हैं तो 2 ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा सेम होंगे, और अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो 2 ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा डिफरेंट होंगे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, लास्ट एप्लीकेशन, जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है इसकी, ये कहते हैं कि जो डिफरेंसेस है वो बहुत दूर की पॉपुलेशंस में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, the difference between humans and chimpanzees, इन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ 3% DNA डिफरेंट है। they have same 97% DNA, and in case of human and mice, to your surprise, आप सोचेंगे ये और पास होने, दूर होने चाहिए थे, यहाँ पर सिर्फ 2.5% DNA डिफरेंट है। दे आर अप्रोक्सीमेटली 97.5% DNA आर सेम।
So these are the various observations made when we studied the SLP maps. And there is a topic, genes and diseases. This is important because many times question arises from this topic, that are genes and diseases. A complete table is given in our book, and in that we have discussed the single gene mutation and gene polymorphism. जीन पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पर एक से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व है किसी डिजीज़ के लिए, और यहाँ पर एक ही जीन इन्वॉल्व है किसी डिजीज़ के लिए. फॉर एग्जाम्पल सिस्टिक फिब्रोसिस. सिस्टिक फिब्रोसिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. और जब हम इसकी बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की, तो यहाँ पर जो वेरिएशन आती है वो आती है 7q31:2. What is this Q and what is this 7? 7 means 7th क्रोमोसोम. हमारी बॉडी में 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसका 7th क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म. Q is for लॉन्ग आर्म. ये सेंट्रोमियर है. दीज आर द क्रोमैटिड्स. ये क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है. क्रोमैटिड्स है. दिस इज सेंट्रोमियर. इसमें जो शॉर्ट आर्म होती है दैट इज नोन एज पी आर्म, व्हाइल द लॉन्ग आर्म इज नोन एज क्यू आर्म. तो इस क्यू आर्म के 31st लोकस पे सेकेंड पोजीशन में चेंज है, दैट लीड्स टू अ डिजीज नोन एज सिस्टिक फिब्रोसिस. तो यहाँ पर एक ही जीन इन्वॉल्व है, एंड दिस इज ऑटोसोमल recessive disorder. The second disease under single gene mutation is the Huntington's disease, which is a autosomal dominant disease. ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है. और रिसेसिव और डोमिनेंट हमें पता है. रिसेसिव जब एक जीन में अगर प्रॉब्लम है एक क्रोमोसोम में, तो डिजीज एक्सप्रेस नहीं करती है, बट अगर डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस करती है. यहाँ पर 4th क्रोमोसोम की पी आर्म, पी कौन सी है? स्मॉल, उसके 16 लोकस के 3rd पोजीशन में चेंज है. जीन पॉलीमॉर्फिज्म व्हेन मोर देन 2 genes are involved, and here the example is the Alzheimer's. और अल्जाइमर्स में 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, क्रोमोसोम 19 एंड क्रोमोसोम 10. इन दोनों में वेरिएशंस आते हैं. एंड द अनदर इज माइग्रेन. माइग्रेन में भी 2 जीन्स इन्वॉल्व है. वन इज 6 एंड अनदर इज 1. एंड nowadays board starts asking questions about the locus position, so you have to learn the locus position. यहाँ पर 19th क्रोमोसोम की क्यू आर्म में चेंज है. इसको हम लिखते हैं 19th क्रोमोसोम की क्यू आर्म का 13th लोकेशन, 13th लोकस, एंड 10th क्रोमोसोम की भी क्यू आर्म का 21 पोजीशन. अल्जाइमर्स के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है. हंटिंगटन्स के लिए 4th क्रोमोसोम की पी आर्म का वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है, और माइग्रेन में 6th पोजीशन की पी आर्म का 21 क्रोमोसोम 12 से लेकर 21 तक में प्रॉब्लम आती है, और 1st क्रोमोसोम की क्यू आर्म का 31 लोकस में वेरिएशन आती है. सो you have to learn this table, because a single nucleotide variation may lead to the susceptibility of a particular disease or the prevention of the particular disease. susceptibility में हमने APOE जीन अल्जाइमर्स का केस पढ़ा था, और CCR5 जीन
एड्स के केस में, HIV डिजीज के केस में पढ़ा था. So this is all about SNP, means a single variation in the nucleotide. And उस single nucleotide variation से हम लोगों को क्या क्या पता चल सकता है. हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, हम जीनोमिक जो क्लिनिकल एफिकेसी है वो पता लगा सकते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कितना रिलेशन है वो पता लगा सकते हैं. तो ये सब SNP के बारे में है. And the next topic which we will discuss in the next lecture is fish technique. So thank you for today.